Good morning, students. How are you? Okay. It is the period of civics, chapter 3, electoral politics, topic acceptance of election. Acceptance of election means चुनाव की स्वीकृति। इसका अर्थ यह हुआ कि जो चुनाव हुआ इलेक्शन कमीशन के द्वारा कराया गया, कंपेनिंग, पोलिंग, काउंटिंग, जो भी कुछ हुआ, इसके बाद उसका जो आउटकम्स आए, रिजल्ट आए, क्या वह सबके द्वारा स्वीकृत हैं? क्या अपोजिशन पार्टीज दोज लास्ट देयर सीट्स also accepted the people's verdict? We shall study all these things in this topic. One final test of the free and fairness of the election has in the outcome itself. इलेक्शन स्वतंत्र और निष्पक्ष हुआ है, यह परिणाम इलेक्शन खुद बताता है। इफ इलेक्शन इज नॉट फ्री एंड फेयर, इफ इलेक्शन इज नॉट फ्री एंड फेयर, द आउटकम ऑलवेज फेवर्ड द पावरफुल। अगर चुनाव प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं हुई है तो चुनाव का जो परिणाम होता है वह केवल शक्तिशाली लोगों के पक्ष में होता है। द रूलिंग पार्टीज डू नॉट लॉस इलेक्शंस। Usually the losing party does not accept the outcome of rigged election. It means if there is no free and fair election, then powerful people, the election goes into the powerful people. In this situation, ruling parties not lose elections, and when there is no free and fair election, then the losing parties does not accept the outcome of rigged election. अगर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ है तो इसमें जो शक्तिशाली लोग होते हैं, शक्तिशाली हस्तियां होती हैं, उनके पक्ष में वोटिंग होती है और इससे रूलिंग पार्टी कभी भी रूल से नहीं हट पाती, क्योंकि चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहा है। और इस तरह से जो चुनाव होते हैं उसको अपोजिशन एक्सेप्ट नहीं करता। इस तरह से अगर in this way, if there is no free and fair election, then its outcome is not accepted by the opposition. The outcome of India's elections speaks for itself. भारतीय इलेक्शन के जो भी परिणाम होते हैं वो खुद बोलते हैं कि वास्तव में क्या हुआ है।
यानी जो इलेक्शंस टेक प्लेस इन फ्री एंड फेयर आर नॉट। आउटकम ऑफ इंडियन इलेक्शन स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। क्या स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव हुए हैं और इसको सभी लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसके परिणाम को सभी लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं और पीपल्स वर्डिक्ट को मान रहे हैं, चाहे वो डिफीटिंग पार्टी हो या विनिंग पार्टी हो। इन दिस वे द आउटकम ऑफ इंडियाज इलेक्शंस स्पीक फॉर इटसेल्फ। फर्स्ट है, द रूलिंग पार्टीज routinely lose elections in India both at the national level and state level. In the ruling party routinely lose election in India both at the national level and state level. In fact, in every 2 out of 3 years, every 2 out of 3 elections held in the last 15 years, the ruling party lost. The ruling parties routinely lose elections in India both at national level and state level. In fact, in every 2 out of 3 elections held in the last 15 years, the ruling party lost. यह एक्सपीरियंस रहा है भारतीय चुनाव का पिछले 15 साल से, चाहे वह नेशनल लेवल पर हो या स्टेट लेवल पर हो, लेकिन 3 इलेक्शन में से 2 इलेक्शन तो रूलिंग पार्टी हारती है, इसके बाद फिर तीसरा इलेक्शन जीतती है। अक्सर यह देखा गया है। इन USA, an incumbent or sitting elected representative rarely loses an election. अमेरिका में क्या होता है, वहाँ पर जो सिटिंग रिप्रेजेंटेटिव है, प्रेजेंट रिप्रेजेंटेटिव है, एट द टाइम ऑफ इलेक्शन रेयरली लॉस एन इलेक्शन। बहुत मुश्किल से कहीं कहीं वो लॉस करता है अपना सीट, अन्यथा नहीं। इन इंडिया अबाउट हाफ ऑफ सिटिंग MPs or MLAs lose elections. Here you can see that in USA a sitting representative rarely loses an election, but in India about half of sitting MPs or MLAs lose elections. Candidates who are known to have spent a lot of money on buying votes and those with known as criminal connections often lose elections. Candidates who have spent a lot of money
to using his or her money power by buying votes. And also, if they have connection with criminal people, then voters not accepted them, and often they lose elections. ऐसे लोग जो लोग धनाढ्य होते हैं और पैसे के बल पर वोट खरीदना चाहते हैं या उनका कनेक्शन किसी क्रिमिनल फील्ड से है, आपराधिक जगत से है, तो ऐसे लोग जो होते हैं अक्सर इलेक्शन में हार जाते हैं. Bearing very few disputed elections, the electoral outcomes are usually accepted publicly as people's verdict. People's verdict means janadesh. Verdict means favor of people means janadesh by the defeated parties. Bearing very few disputed elections means in India, with the help of election commission and all government machinery, very few disputed arose in elections. बहुत कम डिस्प्यूट होते हैं इलेक्शन में, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पूर्ण रूप से निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराता है. इसमें बहुत छोटी मोटी गड़बड़ियां कहीं मिलती हैं, लेकिन इन गड़बड़ियों को सभी पार्टी में भी विनिंग पार्टी और लूजिंग पार्टी all accepted publicly as people's verdict by the defeated parties. तो इस तरह से जो इंडिया में चुनाव होते हैं इसमें गड़बड़ी वैसे नहीं होती, लेकिन कहीं कहीं पर थोड़ा बहुत इलेक्शन में गड़बड़ी हो जाती है. लेकिन जो इलेक्शन का परिणाम होता है इसको जो लूजिंग पार्टी होती है, हारी हुई पार्टीज या नेता लोग होते हैं, वह भी इस मतदान को पब्लिक का जनादेश मान करके एक्सेप्ट कर लेते हैं. इस तरह से जो चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष कराए जाते हैं हमारे देश में, वह सभी के द्वारा मान्य होते हैं, चाहे वह विनिंग पार्टी हो या डिफीटिंग पार्टी हो. ये सभी लोग परिणाम को एक जनता का आदेश मान करके स्वीकार कर लेते हैं. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू. योर क्लास इज ओवर.